Jai India students, I am your science teacher Dr. Preeti Mittal, and today we are going to discuss about a very interesting, very chotu sa chapter, that is heredity. Heredity chapter, although it's very small, but yet it's very interesting and very important for your exams as well. So, क्योंकि ये छोटा सा chapter है, so limited topics है, and from those topics only something would be asked in your exams. So, what do you understand by heredity? What is the meaning of heredity? Heredity means that we are going to get a characteristics from our parents, and this inheritance of characteristic features from our parents is only known as heredity. आपने ये डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करा होगा दैट whenever a baby is born at that time everyone in the family is talking about कि आईज तो पापा जैसी हैं, नोज तो मम्मी जैसी हैं, लिप्स बिल्कुल दादी पे गए हैं. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? क्यों बेबी के आईज, नोज, हेयर, color of the skin, all that resembles the parents or the grandparents? We are going to discuss about all that in this chapter. And that inheritance of the features from our parents and grandparents is only known as heredity. In the reproduction chapter, we have seen the importance of variations. तो सबसे पहले वेरिएशंस की इम्पोर्टेंस एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. So, variations are very, very important. Variations only bring about the evolution. Variations की वजह से ही adaptation possible होता है, evolution possible होता है. But ये variations आते कैसे हैं? We have seen in the reproduction chapter also कि जब भी ये DNA की copying होती है, for creation of the next generation, DNA की एक copy create होना ज़रूरी होता है. जब भी ये डीएनए की कॉपी क्रिएट होती है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, एंड दैट ओनली लीड्स टू द वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशंस और भी ज़्यादा पॉसिबल थे. वी हैव सीन कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आधे क्रोमोसोम्स मतलब आधा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द मदर एंड हाफ ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द फादर. क्योंकि दो अलग अलग मेंबर्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है तो डेफिनेटली बेबी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पापा से आई है, कुछ इंफॉर्मेशन मम्मी से आई है. these two information are different and that is why baby ना exactly पापा के जैसा होगा ना ही exactly मम्मी जैसा होगा. The baby will be having some features from the mother and some features of the father, like मम्मी के ऊपर eyes गई हैं और nose पापा जैसी है. So that is because of the genetic information that a baby is getting from both the parents, and that only leads to variations. We have seen the importance of this variation, and we have also seen that these variations are very important for the survival of a species. These variations might not be very important for one particular individual, पर उसके स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ये वेरिएशंस कभी कभी बहुत important होते हैं. And for that we have seen one example. Let's see to that example once again. सपोज एक एरिया में कुछ बैक्टीरियाज रह रहे हैं एंड दैट इज अ हॉट वाटर स्प्रिंग. नाउ क्लाइमेटिक चेंजेस किसी भी एरिया में होते रहते हैं. सो क्लाइमेटिक चेंजेस, चेंजेस इन द फिजिकल फैक्टर्स, चेंजेस कुड बी देयर इन द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑफ द एरिया. तो हम सपोज करते हैं एक बैक्टीरिया का ग्रुप है दैट इज लिविंग इन अ हॉट वाटर स्प्रिंग. Now, one more thing is there. One word is given in the NCERT book, that is niches. Students always have a confusion that, ma'am, what is the meaning of this niches? Niches. Niches simply means a habitat or a place where organisms are living. तो ये बैक्टीरियाज भी अपने निचेस में लिव कर रहे हैं, जिस एरिया में हॉट वाटर स्प्रिंग में है वहाँ पर लिव कर रहे हैं. सपोज ये बैक्टीरियाज एक से दो, दो से चार डिवाइड हो रहे हैं एंड वन ऑफ द बैक्टीरियाज वेरिएशंस डेवलप करता है एंड दैट डेवलप्स अ फीचर ऑफ हीट रेजिस्टेंट. नाउ दैट बैक्टीरिया इज बिकमिंग हीट रेजिस्टेंट. अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. सपोज एवरी नेक्स्ट जनरेशन के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है
but that increase in temperature is very less. And just for example, suppose it's 0.1 degree, तो हर नेक्स्ट जनरेशन के साथ में 0.1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. बट क्या ये 0.1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना किसी भी बैक्टीरिया के लिए मैटर करेगा? नॉट एट ऑल. जिस बैक्टीरिया ने हीट रेजिस्टेंस डेवलप किया है ना तो उसे कुछ फायदा होगा, और जिनके पास हीट रेजिस्टेंट फैक्टर नहीं है उन्हें भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज वेरी वेरी स्लाइट, जस्ट 0.1 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों ही बैक्टीरियाज अपनी लाइफ नॉर्मल कंटिन्यू करेंगे. बोथ ऑफ देम वुड बी हार्डली अफेक्टेड बाय दैट चेंज ऑफ टेम्परेचर. बट सपोज आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, हर जनरेशन के साथ 0.1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, और अगर अब हो चुकी हैं 1000 जनरेशन ऑफ बैक्टीरियाज, तो 1000 जनरेशन के बाद क्या सिचुएशन होगी? जब 1000 जनरेशन हो चुके हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो चुका है? जस्ट थिंक ओवर इट. 1000 multiplied by 0.1, and the total increase in the temperature is now 100 degrees Celsius. It's too high, but that is just an example. तो सपोज अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, तो those bacteria who have not developed that heat resistance won't be able to survive. पर जिन बैक्टीरियाज में ये हीट रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप हो गया, दैट वुड बी एबल टू सर्वाइव. तो जितने भी वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया था जिसने फर्स्ट टाइम हीट रेजिस्टेंस डेवलप किया था, उसके लिए हीट रेजिस्टेंस वाला वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था. पर क्योंकि उसके स्पीशीज के पास भी अब ये हीट रेजिस्टेंस फैक्टर आ गया है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इट्स स्पीशीज. नाउ जिन बैक्टीरियाज के पास हीट रेजिस्टेंट फीचर नहीं है, जिन्होंने वेरिएशंस फॉलो नहीं करे, जिनमें वेरिएशंस नहीं आए, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस इंक्रीज टेम्परेचर में, एंड देयर स्पीशीज वुड बी लॉस्ट फॉर एवर. बट जिन बैक्टीरियाज ने ये हीट रेजिस्टेंट फैक्टर गेन कर लिया, चेंजेस आ गए, एंड दैट विल बी एबल टू सर्वाइव वेरी वेल in that increased temperature also. Okay, so that brings to you the answer for the question that is asked in your exams, that is why the variations might not be very much beneficial for a particular individual, like the first generation of bacteria which developed that variation, but it's very important for the survival of species like our last generation of bacteria, जिसको असली में फायदा हुआ उस वेरिएशंस डेवलप होने का, क्योंकि वेरिएशंस की वजह से हीट रेजिस्टेंस उनके फोर फादर्स ने, दादाजी के भी दादाजी के भी दादाजी ने डेवलप किया था उस बैक्टीरिया के, बट दैट वाज कैरिड ऑन टू दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें इस हीट रेजिस्टेंस का बेनिफिट हुआ, और वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए. ओके, so the development of these variations, we have seen that it might be very much important for the survival of a species. Okay, now next we are going to talk about the traits. हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बात करी थी कि कुछ फीचर आपके पापा जैसे दिख रहे हैं, कुछ मम्मी जैसे दिख रहे हैं, तो इन फीचर्स को ही कहते हैं ट्रेट्स. These features are only known as traits. We get these traits from our parents. पापा के ऊपर जाते हैं, मम्मी के ऊपर जाते हैं. बट क्या सारे के सारे ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स पे जाएंगे? क्या हम कुछ नया नहीं सीखेंगे अपनी लाइफ टाइम में? बिल्कुल सीखेंगे. एंड दैट इज वाई दीज ट्रेट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड एज acquired traits and inherited traits. So let's talk about both these types of traits. इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है द फीचर्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, चाहे फादर से या मदर से. बट वॉट एवर फीचर्स वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स. Now, these inherited traits include the color of your eyes, that is iris. The texture of your hairs means your hair are going to be curly or straight. The color of your skin, your height, and your blood group, and many more.
So, all these features that are dependent on our parents that we get from our parents are known as inherited traits. बट इसके अलावा कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर हेल्थ. अ पर्सन कुड बी वेरी फैट मतलब ओबेस और द पर्सन कुड बी थिन. दैट माइट बी डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सनस लाइफ स्टाइल और इसलिए दैट इज वन ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेट्स. Second example could be singing. Some persons could be a very good singer. तो अगर आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो, आपने अपनी लाइफ में सिंगिंग सीखा है, तो दैट इज़ योर एक्वायर्ड ट्रेट. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट म्यूजिक, योर किड्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड सिंगर्स. They can learn that quality from you, but that is not going to be inherited to the next generation. And such traits which do not pass on from one generation to another are known as acquired traits. Okay, so we have seen about acquired and inherited traits, and we want to know how we are inheriting the traits from our parents. For that, see you all in the next video. I hope you are able to understand the things in a proper way. So that's all for today. Good day, everyone, and take care of yourself.